सूरत के पलसाना तालुका के वेरवा और करेढ़ी गांव में भारी बारिश के बाद की तस्वीरें डराने वाली हैं। पलसाना तालुका के करेढ़ी गांव की सवर्ण विला सोसाइटी अब भी बारिश के पानी में डूबी हुई है। भले ही पिछले 12 घंटों से बारिश बंद हो चुकी है, लेकिन पानी का स्तर अभी तक कम नहीं हुआ है। करीब 300 से ज्यादा घर इस सोसाइटी में पूरी तरह पानी में घिरे हुए हैं। लोगों के घरों में अब भी 3 से 4 फीट तक पानी भरा है, जिससे घर का काफी सामान खराब हो गया है और भारी नुकसान की स्थिति है। पलसाना का बलेश्वर गांव इन दिनों बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहा है। गांव के पास से बहने वाली बत्रिश गंगा खाड़ी उफान पर है, जिसके चलते खाड़ी का पानी गांव में घुस गया। टांकी, फड़िया और हलपतिवास इलाकों में पानी भर जाने से हालात बिगड़ गए। प्रशासन ने तुरंत कार्यवाही करते हुए इन इलाकों के 45 से अधिक घरों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। सूरत के खटोदरा इलाके में भारी बारिश से बिगड़ी स्थिति का गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने स्थलीय दौरा किया। उन्होंने कहा कि पिछले 40 वर्षों में ये सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। उन्होंने जानकारी दी कि आगामी 2 दिनों में पूरे शहर में दवा का छिड़काव और सफाई का विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही मेडिकल टीमें प्रभावित इलाकों में घर घर जाकर स्वास्थ्य जाँच करेगी, ताकि किसी भी प्रकार की बीमारी को रोका जा सके। खूब भारी वरसादना कारणे मात्र 36 કલાકમાં 16 ઇંચથી વધારે વરસાદ આવ્યો, પરંતુ પહેલા દિવસે જેમ વરસાદનું પ્રમાણ ઘટ્યું, પાણી ઉતરતાની સાથે મહાનગરપાલિકાની ટીમ દ્વારા દવા છાંટવાની કામગીરી હોય, સફાઈની કામગીરી હોય, સાથે સાથે આ બધા જ લોકોને મહાનગરપાલિકાની જે સ્કૂલો છે અને બીજી જે કઈ વ્યવસ્થાઓ છે ત્યાં સુરક્ષિત રીતે ખસેડવાની કામગીરી હોય, આ બધી જ કામગીરી ખૂબ સરળતાથી ને સારી રીતે મહાનગરપાલિકાની ટીમ અને પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી। આજે વહેલી સવારથી ભગવાન જગન્નાથજીની રથયાત્રાની વ્યવસ્થાઓ પૂર્ણ થતાની સાથે જ સુરત મારા મત વિસ્તારમાં ભટાર ક્ષેત્રમાં જે આંબેડકર નગર અને બીજા અન્ય વિસ્તારો જ્યાં નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં જ્યાં પાણી ભરાયું હતું, ત્યાં જ્યારે નાગરિકોને મળ્યો ત્યારે નાગરિકો તરફથી જે માહિતીઓ આવી કે પોલીસ અને મહાનગરપાલિકાની ટીમ દ્વારા વરસાદ પડતાની સાથે જ ઘરો સુધી પહોંચીને સૌ ઉંમરલાયક વડીલોને તથા બાળકોને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવા જોડે જોડે બધી જ માહિતીઓ આપવા માટે જે કામગીરી કરી, એ કામગીરી રાત દિવસ છેલ્લા 2 દિવસથી વહીવટી તંત્ર દ્વારા જે કરવામાં આવી છે, એ ખૂબ સારી કામગીરી કરી છે। बड़ोदरा शहर में एक बार फिर प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा एक गरीब रिक्शा चालक को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ा। सरदार एस्टेट से वृंदावन 4 रास्ता की ओर जाने वाले मार्ग पर हाल ही में एक रिक्शा चालक की सड़क हादसे में मौत हो गई। रिक्शा चालक की सड़क हादसे में मौत होने के बाद इलाके में गम और गुस्से का माहौल है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन को सड़क की खराब स्थिति को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। વડોદરા શહેરમાં આવેલ જે સરદાર એસ્ટેટથી જે કહેવાય છે કે વાઘોડિયા જવાનો જે મુખ્ય માર્ગ છે, આ રોડ જે કહેવાય છે કે તદ્દન જે ખાડા ભૂવા પડી રહ્યા છે। સાથે સાથે ગઈકાલે રાત્રિના રોજ જે એક રિક્ષા ચાલકનું જ્યારે મૃત્યુ થયું હોય ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક લાગી રહ્યું છે કે કોન્ટ્રાક્ટરની અને કોર્પોરેશનની બેદરકારીના કારણે મૃત્યુ થયું છે। ત્યારે ખાસ કરીને હું આપના ન્યૂઝના માધ્યમથી અપીલ કરું છું કે આ જે રિક્ષા ચાલક છે, આ રિક્ષા ચાલકના પરિવારને વળતર ચૂકવવું જોઈએ, એવી અમારી ખાસ માંગણી છે। કારણ કે વડોદરા શહેરના નાગરિકોનો એડવાન્સ ટેક્સ ભરી રહ્યા છે,
ત્યારે એડવાન્સ ટેક્સના રૂપે પણ આમને વહેલામાં વહેલી તકે વળતર મળવું જોઈએ। સાથે સાથે અહીંના સ્થાનિકોએ જે કહેવાનો મતલબ કે અહીંના સ્થાનિક લોકો છે તેઓને અવારનવાર જે રજૂઆત લેખિતમાં મૌખિકમાં કરી છે, છતાં પણ વડોદરા શહેરના જાડી ચામડીના મગરોના પેટનું પાણી હલતું નથી। એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક વડોદરા શહેરની અંદર જે અહીંના સ્થાનિક કોર્પોરેટરો છે, ધારાસભ્યો છે, સાથે સાથે અધિકારીઓ છે, આ તમામ રીતે નિષ્ફળ થયા હોય ત્યારે ખાસ કરીને વડોદરા શહેરના મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાહેબ, મેયર સાહેબ, ચેરમેન સાહેબ, આ તમામ લોકોએ આગળ આવવાની જરૂર છે। કારણ કે 8 મહિના સુધી આ જાડી ચામડીના મગરો વિશ્વામિત્રીમાં સૂતા હોય છે અને જ્યારે 4 મહિનાનો વરસાદ હોય છે ત્યારે જે ખાડા પૂરવા માટે નીકળી જતા હોય છે, ત્યારે હું આજે આપના ન્યૂઝના માધ્યમથી અપીલ કરું છું કે આ તમામ રોડ રસ્તાના ખાડા ભૂવા જે પણ હોય તેને તાત્કાલિક ધોરણે, યુદ્ધના ધોરણે પુરાણ કરવામાં આવે અને આ પરિવારજનને ન્યાય આપવામાં આવે તેવી અમારી ખાસ માંગણી છે। गुजरात के वडोदरा में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। मंदिर परिसर में सुरक्षा से लेकर प्रसाद और रथ श्रृंगार तक हर व्यवस्था की बारीकी से निगरानी की जा रही है। भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा की तैयारियां वडोदरा में शुरू हो चुकी है। श्रद्धा और सुरक्षा दोनों पहलुओं का खास ध्यान रखा जा रहा है। मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया, जिसमें डॉग स्क्वाड की मदद से हर कोने की जांच की गई। मैं बहुत इस बात के लिए प्रशासन को आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने रथ यात्रा को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार का कोई कोर कसर बाकी नहीं रखा है। सब प्रकार से वो अपनी पूरी तत्परता दिखा रहे हैं। बम स्क्वाड वालों को, डॉग स्क्वाड को, आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं सबका उनके द्वारा निरीक्षण किया गया है ताकि प्रशासन अपनी तत्परता दिखा रहा है, कोई किसी को समस्या ना हो। कॉरपोरेशन का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने आकर के बाकायदा विजिट किया, रूट क्लियर किया और रथ के लिए बैरिकेटिंग इत्यादि की सारी व्यवस्थाएं करी और आनंद के साथ में रथ को स्टेशन तक ले जाया जाए, इसलिए मैं सभी का आभार व्यक्त। आगामी तैयारियों के रूप में जगन्नाथ जी के रथ का डेकोरेशन किया जाएगा, फूल इत्यादि से उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। रथ के पीछे 45 टन जो सीरा है वो वितरित होगा, तो उसके लिए आज से ही सीरा बनाने का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया है। उसमें घी, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण होता है भावना और श्रद्धा का मिलन, वो भी किया जा रहा है ताकि श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ में जगन्नाथ जी का प्रसाद लेने के लिए वहां उपस्थित होते हैं और जगन्नाथ जी की यात्रा की संपन्नता उनके प्रसाद से ही मानी जाती है। तो वो प्रसाद भी बनाया जा रहा है और उस प्रसाद का वितरण करते हुए हम यहाँ से लेके जाएंगे। बड़ौदा वासियों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ और उनसे ही प्रार्थना और विनती करना चाहता हूँ कि अपने सब परिवार वो लोग निकल करके आए, जगन्नाथ जी का दर्शन करें और अपने जीवन का लाभ उठाएं, क्योंकि ऐसा सौभाग्य वर्ष में मात्र एक बार प्राप्त होता है जब जगन्नाथ जी अपने मंदिर से निकल करके नगरचर्या के लिए निकलते हैं। हर व्यक्ति अपना घर छोड़ करके भगवान के दर्शन के लिए आता है, तो भगवान ने कहा कि मैं अब एक दिन ऐसा निकालता हूं कि मैं स्वयं निकलूंगा और अपने भक्तों को दर्शन दे करके उनके जीवन को लाभ प्रदान करूंगा। तो मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि वो लोग आए, भगवान का दर्शन करें, प्रसाद खाएं और आनंद मनाएं। मंदिर से लेकर रथ तक किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस बल पूरी तरह से अलर्ट पर है। इधर भक्तों के लिए महाप्रसाद के रूप में हलवा तैयार करने की प्रक्रिया भी आज से शुरू हो चुकी है। परंपरा के अनुसार रथ यात्रा के साथ करीब 45 टन हलवा प्रसाद के तौर पर भक्तों में वितरित किया जाता है। इसे चरणबद्ध तरीके से पकाया जा रहा है ताकि हर भक्त को प्रसाद मिल सके। ये भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा 44वीं है हमारी। हर साल हम बड़ौदा शहर में हमारा रथ जहाँ जहाँ घूमता है वहाँ हम पीछे प्रसाद की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि हमको शाम को इधर भंडारा रखते हैं लेकिन नगरजन इतने दूर आ नहीं सकते, तो पीछे भगवान का रथ के पीछे हलवा बना के हम इसमें ड्राई फ्रूट है, बादाम, पिस्ता, चारोरी, इलायची, द्राक्ष सब डाल के सबको पहुँचे, बस यात्रा का लोग दर्शन करें और प्रसाद पाए। 45 टन का सीरा बन रहा है, अभी सुबह से चालू हुआ, कल 12 बजे तक सीरा पूरा बन जाएगा। फिर शाम को बड़ा भंडारा है, 25,000 भक्तों के लिए भंडारा रखा है। करीब 75 कारीगर है और मजदूर लोग भी है। अभी चेंजिस इस्कॉन टेम्पल से जो हम पहले ले जा रहे थे, यहाँ से मलार पॉइंट से रेसकोर्स सर्कल से गेंडा सर्कल से पंड्या ब्रिज और पंड्या ब्रिज से यू टर्न लेके जो रेलवे स्टेशन जाते थे डेपो होकर के, वहाँ अभी मेट्रोपोल का काम चालू है पंड्या ब्रिज। इसकी वजह से हम रास्ता चेंज किया है और प्रशासन और इस्कॉन टेम्पल की तरफ से निर्णय लिया गया है और
सब भक्तों को ये जानकारी देना चाहते हैं हम कि रास्ता चेंज होने की वजह से आप सब लोग टाइम पर पधारिए और रास्ता चेंज होने वाला जो निर्णय है सब ने मिलके लिया है और वो फतेहगंज पंड्या ब्रिज से नीचे उतर के फतेहगंज से यूनिवर्सिटी रोड, यूनिवर्सिटी से कमाटी बाग से काला घोड़ा होके सयाजीगंज और जहां हर साल रखते हैं स्टेशन के सामने वहीं रखा जाएगा और सब भाई भक्तों को आने के लिए निमंत्रण है। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Mulberry Heights 3 BHK and 4 BHK premium flats, connecting you to a new way of life. वडोदरा के मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन न्यू गोत्री रोड पर आलिशान अपार्टमेंट। यहाँ बना है आपके सपनों का घर। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल फिनिश और डिजाइनर बाथरूम स्पेशल फैसिलिटी के साथ। मल्टीपर्पज हॉल, AC जिम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, अलॉटेड पार्किंग, CCTV जैसी कई एमिनिटीज। मलबेरी हाइट्स, खुद के घर का खूबसूरत एहसास। मलबेरी हाइट, ऑपोजिट दर्शनम क्लब लाइफ, न्यू गोत्री, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 9712932205। होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी ना भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस, बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के तहत गुजरात के कई शहर जिलों में बरसात जमकर बरस रही है। वडोदरा शहर में भी पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। साथ ही ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते वडोदरा के आजवा डैम और विश्वामित्री नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वडोदरा में आज 26 जून दोपहर करीब 1 बजे आजवा सरोवर का जलस्तर 210.08 फीट दर्ज किया गया।
वहीं विश्वामित्री नदी का जलस्तर काला घोड़ा पर करीब 12.56 फीट दर्ज हुआ। विश्वामित्री और आजवा सरोवर का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में पालिका और प्रशासन समूचे मामले पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। 15 अगस्त तक आजवा डैम का रूल लेवल 211 फीट मेंटेन करना होता है। ऐसे में बढ़ रहे जलस्तर के बाद पालिका और प्रशासन द्वारा पानी छोड़े जाने का निर्णय लिया जा सकता है। गुजरात के छोटाउदेपुर के पावीजेतपुर में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते सुखी डैम के दरवाजे 60 सेंटीमीटर तक खोलकर नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। पावीजेतपुर के सुखी डैम में लगातार पानी की इनकम हो रही है, जिसके चलते डैम का तीसरा दरवाजा 60 सेंटीमीटर तक खोलकर 5555.75 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे किनारे के गांव को अलर्ट कर दिया गया है। डैम के 5, 6 और 7 नंबर के दरवाजों को खोलकर पानी को नदी में बहाया जा रहा है। पावीजेतपुर के छोटाउदेपुर हाईवे पर नाले की दीवार बैठ जाने से सड़क को बंद कर दिया गया है। सालों पुराने नाले के बैठ जाने से यहां दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। ऐसे में फिलहाल सड़क बंद कर बैरिकेडिंग कर दिया गया है। ये नाला नेशनल हाईवे अथॉरिटीज की निगरानी में आता है। ऐसे में अब NHI की टीम निरीक्षण के बाद ही काम को आगे बढ़ाया जा सकेगा। ऐसे में फिलहाल सड़क बंद करने से लोग परेशान हैं। જેતપુર પાવી નેશનલ હાઈવેનું જે નાળું વસવા કોતરની બાજુમાં આવેલું છે, એ હાઈવેનું નાળું આજે અમારી સામે જ એની અંદરની દિવાલ તૂટી પડી છે, એટલે અમે વહીવટી તંત્રને આ બાબતે જાણ કરી। કલેક્ટર શ્રી સાથે પણ મારે ટેલિફોનિક ચર્ચા થઈ અને અહીંયા ગાડી PI સાહેબ અને બધા હાજર છે। અત્યારે આ રોડને બંધ કરવાનો વારો આવે એવી પરિસ્થિતિ છે અને રોડ બંધ કરવામાં આવશે જ। બારદાર વાહનો તદ્દન બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે। હવે જે કોઈ વ્યક્તિ બરોડા તરફ જવાના હોય છોટાઉદેપુરથી, એ લોકો ચકાસણી કરી અને અહીંયા ગાડી આવે એ જ અમારી બધાને વિનંતી છે। આ તબક્કે લોકો સંયમ રાખે, ખૂબ જ વરસાદ છે એટલે કાળજી રાખી પોતાનો પ્રવાસ ખેડે। જેતપુરની પબ્લિક ખૂબ ત્રાહીમામ પોકારી રહી છે। અત્યારે 4.5 કરોડનું જે નિયતિ કન્સ્ટ્રક્શને જે કામગીરી કરી છે એ ખૂબ જ બોગસ કામગીરી અને આમાં અધિકારીઓ પણ જવાબદાર છે। આવા તમામ અધિકારીઓ સામે કાર્યવાહી થવી જોઈએ। આ જે ભ્રષ્ટાચારી કોન્ટ્રાક્ટર છે એની સામે પણ કાર્યવાહી કરી પૈસાની વસૂલાત થવી જોઈએ અને તાત્કાલિક ધોરણે રાજ્ય સરકાર પાસે અમે તમામ નાગરિકો વતી માંગણી કરીએ છીએ કે આને RCC વર્ગ દ્વારા બનાવવામાં આવે, જેથી કરી અને આવી તકલીફ ના થાય। આ રોડ મધ્યપ્રદેશને જોડે છે, 50 થી 60 ગામોને તકલીફ પડી રહી। વિદ્યાર્થીઓ, તમામ ખેડૂતથી લઈ અને આરોગ્યની સેવાઓ લેવા વાળા માણસોને પણ ખૂબ મોટી તકલીફ પડી રહી છે। સરકાર આ બાબતે યોગ્ય પગલાં લે અને તાત્કાલિક ધોરણે જેટલા રોડો ખરાબ થયા છે નેશનલ હાઈવેને પોતાની જે ઓફિસરો છે એમની ટીમ મૂકી, એક્સપર્ટની ટીમ મૂકી, આવા તમામ નારા અને પુલોની તાત્કાલિક ધોરણે વરસાદ રોકાયા પછી એની કામગીરી થાય એવી અમારી બધાની માંગણી છે।